Hello and welcome. This is again Dr. Mohammad Shaukat Ansari from Department of English, MLSM College, Darbhanga, Bihar, and you are watching his YouTube channel Learn English with Shaukat Ansari. Before I proceed, I would like to place a reminder to all of you that you subscribe to this channel and make my efforts, my endeavors a brilliant success by liking the videos or giving your feedback to the videos, and it's a matter of great delight for me that this is my 97th teaching lesson. Here in this lesson, in this teaching video, I'm going to dive into a brilliant topic, that is tips for effective communication. How can you make your communication effective, forceful and successful? माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन में जानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें, टिप्स जानेंगे, एलिमेंट्स जानेंगे। और आप जब बात किसी से करते हैं तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का स्टाइल जानना चाहिए, कम्युनिकेशन का टेक्निक जानना चाहिए, बेसिक पैटर्न्स जाननी चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, इन्फ्लुएंशियल हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप जब बात कर रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बेहतर हो, आपका आई कांटेक्ट बेहतर हो और आपका फ्लो ऑफ वर्ड्स बेहतर हो, पिच अच्छा हो। आप कैसे बात में के दौरान आप कैसे अपनी बातों को रख पाएँ, ये इम्पोर्टेंट है। It means effective communication involves using appropriate voice and body language. Number two, understanding the situation, context, and the people involved in the communication. And also you have to understand the message being communicated. What should be the message? What is the core of the message? You have to understand and you have to maintain the message. And you have to take responses appropriately. And the contents of the message must be clear, the complete expression of communication. आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका वॉइस एप्रोप्रिएट हो, आप न ज़्यादा लाउड हो न ज़्यादा माइल्ड हो, आपकी आवाज़ ऑडिबल हो, आपके आवाज़ में, आपके वॉइस में, आपके वर्ड्स में फ्लो हो, आपके सेंटेंस से इंटीग्रेटेड हो और साथ ही साथ आपका बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे काम करे। आपका पोस्चर, जेस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, आपका हैंडशेक, आपका स्माइल, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साथ ही आपको सिचुएशन समझना चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझनी चाहिए और आपको किस आदमी से बात कर रहे हैं, किस इंसान से बात कर रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। व्हाट इज हिज स्टेटस, व्हाट इज हिज पोजीशन and where is he posted. Maybe you are talking to your classmate, okay, very informal chat. Maybe you are talking to you are making communication with your boss, with your principal, with your teacher, with your with your high ups, higher officers. There your communication must be different and it must be formal. आपको समझना चाहिए कि टॉपिक क्या है, आपको समझना चाहिए कि आप किस चीज़ में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक के अराउंड हैं, आपका थीम क्या है। सो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर। आपको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करना है, बीच बीच में इंटरवेंशन नहीं करनी है, सुननी है ध्यान से और आपको रिस्पॉन्स देना है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही अप्रोप्रिएट। और आपको जानना चाहिए कि आपके मैसेज का कंटेंट क्या है, क्लियर होनी चाहिए और आपका कम्युनिकेशन फुल होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, नॉट इन हैफेजार्ड वे, नॉट इन दिस वे और दैट वे। यू हैव टू बी फुल, यू हैव टू बी कंप्लीट इन योर एक्सप्रेशन। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, the next element towards
effective communication is that your communication must be concise and brief. And the message and the means of communication to explain the idea must be coherent and systematic. And next tip towards effective communication is that your communication is concrete when, when supported with appropriate data, examples, and facts. Next, the facts and data that are communicated shall be correct and reliable. Courtesy needs to be maintained. मैं इस स्लाइड में ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो, वाइब्रेंट हो, लाइव हो और आपका कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, तो आपको कंसाइज और ब्रीफ होना चाहिए. आप अपनी बातों को संक्षेप में, मुख्तसर में रखें. आपका मैसेज और आपका कम्युनिकेशन का जो मीन्स है, जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो आइडिया को, वो सिस्टमेटिक हो, कोहेरेंट हो. स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू इलेबोरेट, यू हैव टू एक्सप्लेन योर आइडियाज. दूसरी चीज़ है कि कम्युनिकेशन आपका कॉन्क्रीट हो और अगर आप मुनासिब समझें तो अप्रोप्रिएट डेटा दें, अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल दें, अप्रोप्रिएट फैक्ट्स दें इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर आइडियाज. और आपका फैक्ट्स और डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है वो करेक्ट हो, रिलायबल हो. आप बहुत ज़्यादा बोस्ट नहीं करें, टू द पॉइंट बात करें, अराउंड द थीम बात करें, अराउंड द टॉपिक यू हैव टू रोटेट. और साथ ही साथ आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप कर्टसी मेंटेन करें, आप वेल बिहेव्ड हो, वेल मैनर्ड हो, स्माइलिंग हो, वार्मथ आपके अंदर हो और आप अपनी बातों को बखूबी कह सकें, इस चीज़ का जज्बा हो. यू हैव टू बी very open. You have to be a person with open mind, open temperament there. So exhibit yourself as if you are an open person. Let me conclude this teaching lesson. Communication is a cumulative process between two parties, whether they use it verbally or non-verbally. The verbal part of communication consists of words, their use, and relevance in a given context. Verbal communication में इस बात का ख्याल रखें कि आपका वर्ड्स, आपका सेंटेंसेस सही हो, अकॉर्डिंग टू ग्रामर हो और आप सही से इसका इस्तेमाल करें और आपको कॉन्टेक्स्ट का रेलिवेंस समझना है. थैंक यू वेरी मच. Thanks a lot for being with me, for watching this lesson. And again, I would like to place a reminder to all of you that you subscribe to this channel, make this channel a hit among learners of English, lovers of English, and you like, you extend your feedback. Your feedback is always welcome. If you wish to make modifications, you must tell me very openly. So your feedback, your comments are welcome, always welcome. See you. Thank you very much.